آپ کی نماز اللہ کی صلات کیسے بن سکتی ہے؟ سلام علیکم، سلامتی اوپر آپ سب کے۔ بھائی کیا سوچ رہے ہو؟ بھائی میں نے پڑھا ہے سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 45 میں کہ صلات روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیمی الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ پڑھ دو جو وحی کی گئی ہے تمہاری طرف کتاب میں سے، اور قائم کرو خاص صلات رابطہ، بے شک خاص صلات رابطہ روکتا ہے بارے میں خاص فحاشی اور خاص منع کیے گئے، اور یقیناً ذکر یاد دہانی اللہ کی سب سے بڑی ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تو بھائی اللہ کہہ رہے ہیں کہ صلات قائم کرو، کیونکہ صلات روکتی ہے بے حیائی سے اور برے کاموں سے، لیکن میری صلات مجھے نہیں روکتی۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ کیا اللہ کی آیت غلط ہے یا میری صلات غلط ہے؟ بھائی اللہ کی آیات غلط نہیں ہو سکتی، تو آپ کو اپنی صلات کو دوبارہ دیکھنا ہوگا، اور صلات کیسے قائم ہوتی ہے سمجھنا ہوگا۔ چلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ جی پوچھیں۔ آپ جب بھی صلات پڑھتے ہیں تو آپ ہمیشہ ایک دعا کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں کہ ہدایت دیجئے یا دکھائیے مجھے سیدھا راستہ۔ چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ سورہ نمبر 1 الفاتحہ کی آیت نمبر 6 دیکھیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت کر ہماری خاص راستے خاص سیدھے قائم کی۔ جی بھائی بالکل دعا کرتا ہوں۔ تو بھائی کیا آپ کو اس دعا کا جواب آتا ہے، اور کیا آپ کو سیدھا راستہ ملتا ہے؟ مجھے نہیں پتا بھائی۔ دیکھیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اللہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 186 میں کیا کہتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب تم سے سوال کریں میرے بندے حکم پر چلنے والے میرے بارے میں، پھر بے شک میں قریب ہوں، جواب دیتا ہوں پکار کا، خاص پکارنے والے کی۔ جب پکارتا ہے پھر جواب دیں میرے لیے، اور ایمان لائیں ساتھ میرے، تاکہ وہ سمجھ پائیں۔ بھائی اس آیت کے مطابق تو ہمارا اللہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے، جیسے یہ سیدھے راستے کی دعا، لیکن مجھے سیدھا راستہ کیوں نہیں ملتا؟ بھائی آپ کو وہ سیدھا راستہ ملتا ہے۔ ٹھہریے، پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ سیدھا راستہ کہاں ہے، پھر ہم بتاتے ہیں کہ سیدھا راستہ کیسے ملتا ہے۔ آپ سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 9 دیکھیں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ بے شک یہ خاص قرآن پڑھائی ہدایت کرتی ہے اس کے لیے وہ جو سیدھا قائم ہے، اور بشارت دیتی ہے خاص مومنوں کو جو لوگ عمل کرتے ہیں خاص اصلاح والے، کہ ان کے لیے اجر ہے ایک بڑا۔ تو بھائی اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن سب سے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ تو جب آپ صلات میں سورۃ الفاتحہ میں سیدھے راستے کی دعا کرتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کے فوراً بعد آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں قرآن کی آیات، اور اس آیت میں ہوتا ہے اللہ کا سیدھا راستہ، تاکہ آپ رک سکیں بے حیائی سے اور برے کاموں سے۔ مگر چونکہ آپ کو اس کے معنی پتہ نہیں ہوتے تو آپ اس دی گئی ہدایات پر عمل نہیں کرتے، اس لیے آپ کی صلات آپ کو بے حیائی سے اور برے کاموں سے نہیں روک پاتی۔ اور دیکھیے کہ آپ صلات میں سورۃ الفاتحہ میں ان لوگوں کا راستہ بھی مانگتے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا،
आप देखिए सूरह नंबर 1 आयत नंबर 7 में आपकी दुआ और सूरह नंबर 19 की आयत 58 और 59 में अल्लाह का जवाब। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरी अल-मग़दूबी अलैहिम वला अल-दॉल्लीन, रास्ता जो लोग इनाम हुआ तेरा ऊपर उनके, दूसरे खास गजब में हैं ऊपर उनके, और नहीं वो खास गुमराह होने वाले। उलाइका अल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिना अल-नबिय्यीना मिन ज़ुर्रिय्यति आदम व मिम्मन हमलना मअ नूहिन व मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व इसराईल व मिम्मन हदैना वज्तबैना इज़ा तुतला अलैहिम आयातु अल-रहमानी खर्रू सुज्जदन व बुकिया फखलफा मिन बअदिहिम खल्फुन अदाउ अल-सलाता वत्तबउ अल-शहवाति फसौफा यल्कौना गय्या। वो हैं जो लोग इनाम किया अल्लाह ने ऊपर उनके, खास नबियों में से, नफसियाती नस्ल से आदम की, और जिनमें से हमने उठाया साथ नूह के, और से नफसियाती नस्ल इब्राहीम की और इसराइल की, और जिनमें से हमने हिदायत दी और हमने मुंतखब किया। जब पढ़ी जाती हैं ऊपर उनके आयतें खास रहमान की, वो झुकते हैं सजदा तस्लीम करते हुए और रोते हैं, फिर जानशीन उनके बाद से जानशीन हुए। जाया किया खास सलात राबिता को और पैरवी की खास ख्वाहिशात की, फिर अनकरीब बयान की गई गुमराही। तो भाई अगर आप देखें कि अल्लाह इन आयात में इनाम वाले लोगों की एक खास अलामत बता रहे हैं कि जब इनाम वालों पर अल्लाह रहमान की आयात पढ़ी जाती हैं तो इनाम वाले लोग सजदे में गिरकर रोते हैं, क्योंकि उनकी समझ में आयात के अहकामात आते हैं। और अल्लाह बता रहे हैं कि उनके बाद ऐसे लोग आए जिन्होंने अपनी सलात को जाया किया और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की, क्योंकि आयात के अंदर की हिदायत को वो समझ नहीं रहे। या अल्लाह, तो अगर मुझे अपनी सलात जाया होने से बचानी है और बेहयाई और बुरे कामों से रोकने वाली सलात चाहिए, तो मुझे लाजमी समझना पड़ेगा उन अल्फाज को और आयात को जो हम सलात में पढ़ते हैं। बिल्कुल सही। देखें अल्लाह कुरान में हजरत शुएब की सलात दिखा रहे हैं। आप सूरह नंबर 11 की आयत 87 देखिए। क़ालू या शुऐबु अस्सलातुका तअमुरुका अन नत्रुका मा यअबुदु आबाउना औ अन नफ़अला फी अम्वालिना मा नशाउ इन्नका लअंता अल हलीमु अल रशीद। वो कहते हैं, ऐ शुऐब, क्या तुम्हारी सलात तुम्हें हुक्म देती है कि हम छोड़ दें जो इबादत हुक्म पर अमल किया हमारे बाप दादा ने, या कि हम अमल करें बीच हमारे माल जो हम चाहें? बेशक तुम यकीनन तुम हो खास नर्म दिल, खास समझदार। तो भाई इस आयत के मुताबिक अल्लाह के रसूल हजरत शुएब की सलात ऐसी थी जो हुक्म देती थी, ये भी बताती थी कि माल कैसे खर्च करना है। तो आज भी अगर हम जब सलात को समझकर पढ़ेंगे तो इसमें मौजूद कुरान की आयत हमें हुक्म देंगी, और जब हम इन अहकामात पर अमल करेंगे तो सलात कायम होगी। और अगर हमने इन अहकामात पर अमल नहीं किया और सलात से अल्लाह की नसीहत नहीं ली तो कहीं हमारी सलात भी मुनाफिक वाली ना हो जाए। भाई क्या मुनाफिक वाली सलात भी होती है? जी भाई, आप सूरह 4 की आयत 142 देखें। इन्ना अल मुनाफिकीना युखादिऊना अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू इला अल सलाती क़ामू कुसाला युराऊना अल नासा वला यज़कुरूना अल्लाह इल्ला क़लीला। बेशक खास मुनाफिकीन धोखा देते हैं अल्लाह को, और वो है उनको धोखे में छोड़ने वाला। और जब कायम होते हैं
طرف خاص सलात राबिता कायम होते हैं बेदिली से दिखाने के लिए लोगों को और नहीं जिक्र याद दहानी लेते अल्लाह की मगर बहुत कम। भाई इस आयत में अल्लाह मुनाफिक की सलात दिखा रहे हैं जिसका मकसद अल्लाह की आयत से नसीहत लेना नहीं बल्कि खुद पर से बोझ उतारना है कि चलो सलात अदा हो गई। तो इनाम वालों की सलात वो है जो हुक्म दे, और जिस सलात से नसीहत ना ली जाए वो सलात कुरान के मुताबिक मुनाफिक की सलात है। भाई मेरा एक सवाल है, अगर सलात से नसीहत ना ली जाए तो वो सलात मुनाफिक की सलात कैसे हो जाती है? भाई जब आप सलात में सूरतुल फातिहा में सीधा रास्ता मांगते हैं तो अल्लाह की आयत आपको सीधा रास्ता बताती है और आप इस हुक्म को मानकर उस पर रुकू में झुकते हैं। रुकू से खड़े होते हुए कहते हैं कि अल्लाह ने आपकी सुन ली, और फिर अल्लाह का शुक्र करके हुक्म पर सजदा करते हैं कि आप इस हुक्म पर अमल करेंगे। मगर चूंकि हुक्म होता है अरबी में और आप इसके मानी जानने की कोशिश नहीं करते, लिहाजा आप उन अहकामात पर अमल नहीं कर पाते। तो जब हम अल्लाह से सीधा रास्ता मांग कर उस पर सजदा करके अमल नहीं कर पाते तो हमारे कौल और फेल में फर्क आ जाता है, और उसकी सिर्फ एक वजह है कि हम अपनी सलात समझकर अदा नहीं करते और सलात में दिए गए अहकामात पर अमल नहीं करते। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपका एक गुलाम हो जो दिन में 5 मर्तबा आपके पास आए, आपकी तारीफ बयान करे, आपसे हुक्म ले कि क्या काम करना है, मगर वो काम ना करे, तो ऐसे मुलाजिम का आप क्या करेंगे? इसीलिए अल्लाह ने सूरतुल माऊन में हलाकत वाली सलात का भी बताया है। आप देखें सूरा 107 अल माऊन। अरअयता अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिका अल्लज़ी यदुउ अल यतीम वला यहुद्दु अला तुआमी अल मिस्कीन फ़वैलुन लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊना व यमनऊना अल माऊन। क्या तुमने देखा वो जो झूठ घड़ता है साथ दीन फैसले के, फिर वो जो दूर कर देता है खास यतीम को और नहीं उकसाता ऊपर खिलाने खास मिस्कीन के, फिर हलाकत तबाही है सलात राबिता करने वालों के लिए। जो लोग वो हैं बारे में उनकी सलात राबिता न समझ, जो लोग वो हैं दिखावा करते और मना करते हैं खास नेकी के कामों से। तो भाई इस सूरा में अल्लाह बता रहे हैं कि वो सलात हलाकत वाली है जिसके अदा करने वाले यतीमों और मिस्कीनों और करीब के लोगों का ख्याल नहीं करते, क्योंकि सलात में अल्लाह की आयत के जरिए यतीमों और मिस्कीनों और करीब के लोगों के साथ अहसन सलूक करने के अहकामात आते हैं जिन पर आप ना समझने की वजह से अमल नहीं करते। तो भाई समझकर नसीहत लेने वाली सलात ईमान वालों की सलात है, और जिस सलात से नसीहत ना ली जाए वो मुनाफिक की सलात है, और जिसने सलात से ली गई नसीहत पर अमल किया उसने सलात कायम की, और जिसने सलात में मौजूद नसीहत पर अमल नहीं किया तो सूरतुल माऊन के मुताबिक वो हलाकत वाली सलात है। तो भाई वो जो हम सलात के तरीकों में झगड़ते हैं उसका क्या करें? भाई अल्लाह ने कुरान में 77 से जायद आयात में सलात के बारे में समझाया, हमने अहम नहीं समझा। सूरह 4 की आयत 142 के जरिए मुनाफिक की सलात का बताया, हमने मुनाफिक की सलात की तफसील जानना अहम नहीं समझा। सूरह 19 की आयत 58 और 59 के जरिए अपने इनाम वाले बंदों की सलात की खासियत बताई, हमने इनाम वाले बंदों की सलात की खासियत जानना अहम नहीं समझा। सूरह 11 की आयत 87 के जरिए हुक्म देने वाली सलात का बताया, हमने हुक्म देने वाली सलात को जानना अहम नहीं समझा। सूरह 29 की आयत 45 के जरिए बेहयाई और बुरी बातों से रोकने वाली सलात का बताया, हमने बुराइयों से रोकने वाली सलात की तफसील जानना अहम नहीं समझा। हलाकत वाली सलात का सूरह 107 में बताया, हमने ये जानना अहम नहीं समझा कि कौन सी सलात हलाकत लाती है। सूरह 4 की आयत 43 के जरिए ऐसी सलात से मना किया जिसमें समझ ना हो, हमने समझकर सलात को अदा करना अहम नहीं समझा।
اور सलात जिसको कुरान में हजरत ईसा, हजरत मूसा, हजरत लुकमान, हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम, हजरत शुएब, हजरत जकरिया, हजरत इसहाक, हजरत हारून, हजरत याकूब, हजरत लूत जैसे तमाम अंबिया ने कायम की। और अल्लाह ने उसके तरीके के लिए 4 बुनियादी चीजें बयान की, जिसमें पहली चीज आयत को समझकर पढ़ना है ताकि अल्लाह का हुक्म समझ में आ सके। दूसरी चीज उस हुक्म पर रुकू करना है। रुकू के मानी झुकना होते हैं, यानी अपनी जिद, अपनी अना, अपना तकब्बुर और अपनी नफ्सियाती ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म के आगे खत्म करना। तीसरी चीज इस हुक्म पर सजदा करना। सजदा के मानी होते हैं तस्लीम करना, यानी जिस अल्लाह के हुक्म पर आपने रुकू किया उसी हुक्म को आपने तस्लीम किया, अहद किया कि आप इस हुक्म पर अमल करेंगे। और जब आप इस हुक्म पर अमल करते हैं तो आप सलात को कायम करते हैं। ये है अल्लाह की बयान की हुई सलात, जिसमें तरीके की कोई अहमियत नहीं, और इसी को तमाम अंबिया ने अपनाया। इसी बुनियाद पर अल्लाह के घर में एक सलात का निजाम कायम किया गया, जो सूरह 3 की आयत 96 के मुताबिक हिदायत की जगह है। और सूरह 2 की आयत 125 में अल्लाह ने आपको मकामे इब्राहिम से मुसल्ला अखज करने को कहा। तो हर दौर का मुसलमान अल्लाह के घर से अपनी सलात लेगा, जहां एक सलात का निजाम हर दौर में कायम रहेगा, जिससे उम्मत मुसलमा में सलात के तरीके का इख्तिलाफ खत्म हो सकता है। और इस तरीके को जानने के लिए आज भी आप इंटरनेट लगाकर वो तरीका देख सकते हैं। और वहां 2 तरीकों से सलात यानी अल्लाह से राबिता किया जाता है। कुछ लोग नमाज पढ़कर नमाज में पढ़ी जाने वाली आयात के जरिए अल्लाह से सलात यानी राबिता कर रहे होते हैं और अल्लाह के अहकामात ले रहे होते हैं, चाहे हाथ खोलकर पढ़ें या हाथ बांध कर पढ़ें। और कुछ लोग वहीं कुरान पढ़कर कुरान में मौजूद आयात के जरिए अल्लाह से राबिता करके अल्लाह के अहकामात ले रहे होते हैं। तो राबिता अल्लाह से दोनों कर रहे होते हैं, मगर जिस भी सलात यानी राबिते में आयात की समझ हो वो ईमान वाले की सलात है, और जिस सलात यानी राबिते में आयात की समझ ना हो वो मुनाफिक की सलात है। तो सलात के तरीके से ज्यादा अहम सलात के जरिए अल्लाह से हिदायत लेना है और इस ली गई हिदायत पर अमल करना है ताकि सलात कायम हो सके। भाई, मैंने तो हमेशा यही सुना कि सलात के मानी नमाज के हैं। जी नहीं मेरे भाई, सलात के बुनियादी हुरूफ स्वाद, लाम, वाव हैं, जो कुरान में तकरीबन 99 मर्तबा आए हैं। कहीं सलात, कहीं सल्ली, कहीं मुसल्ली, कहीं मुस्कल्लीन, जिसके मानी लोग कहीं दुरूद, कहीं नमाज और कहीं रहमतें कर देते हैं। मगर सलात के असल मानी राबिता के हैं, जो इन तमाम 99 जगहों पर फिट होते हैं। और अगर आप समझते हैं कि सलात के मानी नमाज के हैं, तो कुरान की सूरा नंबर 24 की आयत नंबर 41 में परिंदों की सलात का जिक्र है, तो परिंदे कैसे नमाज पढ़ेंगे? सूरा नंबर 33 की आयत नंबर 56 में अल्लाह और मलाइका हमसे सल्लू करते हैं, तो क्या अल्लाह और मलाइका हम पर नमाज पढ़ते हैं या किताब के जरिए राबिता करते हैं? सूरा नंबर 33 की आयत नंबर 56 में अल्लाह और मलाइका नबी पर सल्लू कर रहे हैं, तो क्या अल्लाह और मलाइका नबी पर नमाज पढ़ रहे हैं या किताब के जरिए राबिता कर रहे हैं? और इसी आयत में अल्लाह ने ईमान वालों को भी नबी पर सल्लू करने का कहा है। तो अगर सल्लू के मानी नमाज के हैं, तो आप नबी पर नमाज कैसे पढ़ेंगे? मगर हर दौर का ईमान वाला नबी से अल्लाह की किताब के जरिए राबिता कर सकता है। तो भाई, सलात के मानी राबिता के हैं। जैसे दुबई की टेलीफोन कंपनी का नाम है इती सलात, जिसमें सलात के मानी राबिता के हैं, नमाज के नहीं। मगर अगर उम्मत का सलात का इख्तिलाफ खत्म हो गया तो मजहब के खुद साख्ता ठेकेदारों की दुकानें बंद हो जाएंगी। लिहाजा वो आपको ये कह करके कुरान में सलात का तरीका नहीं, अल्लाह की किताब को नामुकम्मल कहकर अपने फिरके की किताबों की तरफ ले जाते हैं। और इसी वजह से हमने अंबिया की अल्लाह से कलाम करने वाली सलात छोड़कर, अल्लाह की शरीयत वाली सलात छोड़कर अपने फिरके वाली सलात को शरीयत का हिस्सा समझ लिया।
सलात के मकसद को छोड़कर तरीके को पकड़ लिया और तरीके में झगड़कर फिरके बना लिए और फिरकों में झगड़कर कुफ्र के फतवे लगा दिए। या अल्लाह, भाई मुझे अब एहसास हो गया है कि समझकर सलात अदा करना और सलात में दिए गए अहकामात पर अमल करना कितना जरूरी है। तो भाई सलात को समझने के लिए मुझे अरबी सीखनी पड़ेगी, जिसमें काफी सारा वक्त लग जाएगा। भाई ये बहुत अच्छी बात है अगर आप अरबी सीखें, लेकिन इस दौरान आप बाजार से एक सलात की किताब खरीद लें और सलात में पढ़े जाने वाले अल्फाज के मानी याद कर लें। और जब आप मस्जिद जाते हैं तो सलात के इख्तिताम पर आप मस्जिद के इमाम से पूछ लीजिए कि उन्होंने कौन सी आयत तिलावत की, और फिर आप घर आकर कुरान से उन आयत के मानी पढ़ लें, ताकि आपको इल्म हो कि आपने अल्लाह से किस बात पर अहद किया है। और अगर किसी वजह से आप अकेले सलात अदा कर रहे हों तो अपनी कमजोरियों पर कुछ आयत तर्जुमे के साथ समझकर याद कर लीजिए। तो जब आप समझकर सलात अदा करेंगे तो फिर आपकी तवज्जो सलात के ऊपर से नहीं हटेगी, और जब आप इन अहकाम पर अमल करेंगे तो आपकी सलात कायम होगी। भाई आपका शुक्रिया कि आपने मेरी रहनुमाई की। अब मेरी समझ में आ गया कि अगर मैं अपनी सलात समझकर अदा करूंगा तो मेरी सलात मुझे रोकेगी बेहयाई से और बुरे कामों से, और अगर सलात की वजह से मैं रुक गया बेहयाई से और बुरे कामों से तो मैंने अपनी सलात कायम कर दी। तो भाई अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को शेयर करें और दूसरों को भी सलात कायम करना सिखाएं। और आप हमारी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 50 से ज़ायद वीडियोस हमारे फेसबुक पेज या हमारे क्वेश्चन कुरान ऑफिशियल के नाम से मौजूद यूट्यूब चैनल या हमारी www.questionquran.com के नाम से मौजूद वेबसाइट से देखें, और घर में मौजूद लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा वाले कुरान से तस्दीक भी करें।